السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کی بہن، آپ کی ہوسٹ سدرا امین ایک مرتبہ پھر ایک ہندو لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنے کا مطلب ہے ساتھ جڑنا۔ ساتھ جڑیں گے تو حق کا پیغام گھر گھر پہنچانے میں مدد ملے گی، سچ کا بول بالا ہوگا اور جھوٹ کا منہ کالا ہوگا۔ ناظرین، آج ہم جس بہن کے اسلام قبول کرنے کی کہانی لے کر آئے ہیں وہ ہندو پریوار میں پیدا ہوئیں اور ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھیں، مگر جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے گھر والوں نے اسے 6 سال تک قید میں رکھا اور اسے مجبور کرتے رہے کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ تو آئیے اسی بہن سے جانتے ہیں کہ وہ 6 سال بعد وہاں سے کیسے جان بچا کر بھاگی اور کیسے میڈیا تک پہنچی۔ زبردستی اسلام قبول کرے اپنے؟ نہیں زبردستی میں خود سے لے کر آئی ہوں۔ نہیں، پہلے جب آپ نے اسلام قبول کیا مرضی سے کیا؟ زبردستی۔ شادی آپ نے کون سی عدالت میں کی؟ کراچی سٹی کورٹ۔ اچھا، تو آپ کی جدائی کیسے ہوئی، کس حساب سے ہوئی؟ جدائی بس دھوکے سے ہو گئی۔ اس کے بھائی نے ہمیں کہا میئر چلو اپنے شہر، وہاں پہ ہندو پہچان کا فیصلہ ہے، وہاں تم کہو کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جب میں نیچے اتری فلیٹ سے تو میرے سب گھر والے باہر کھڑے تھے، اس میں مسلم بھی تھے، پھر مجھے اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مطلب آپ کو زبردستی وہاں سے اغوا کیا؟ جی جی۔ اچھا، اتنے سال آپ کہاں پہ قید رہیں؟ کیا میں ہے اپنے گھر پہ ہی رہی، والدین کے گھر؟ جی۔ اچھا، وہاں پہ کوئی آپ کو ٹارچر یا کوئی؟ بس یہی تھا کہ اس سے رابطہ نہیں رکھو، فون پہ بات نہیں کرو، ملنے نہیں جاؤ، اور میرا رابطہ اس کے ساتھ تھا۔ اچھا، ان 6 سالوں میں آپ کے والدین نے کہیں شادی کا کوئی؟ نہیں، اس نے بہت ہی کہا شادی کرو کرو، پر سمجھ گئے تھے ہمیں سے زور زبردستی کریں گے تو یہ پھر سے چلی جائے گی۔ اچھا بہن، جب آپ 6 سال ان کے پاس رہی تو اس دورانی میں انہوں نے آپ کو کہیں کسی اور جگہ رکھا ہو یا کسی اور آپ کے ہندوؤں کے دربار پہ لے گئے ہو، کوئی ایسا مسئلہ آیا آپ کے پاس؟ نہیں، شروع میں آیا جب ہم لڑکی ہے نا یہاں جی سے، جی، وہاں سے آپ کو لے کے آئے یہاں پر۔ کتنے دن یہاں پہ تھیں ہم 8 دن تھے، سب یہاں پر ساتھ ہے، میری پوری فیملی۔ جی، تو جب یہاں آپ کو لایا گیا تو آپ کے ذہن کو کیا تاثر دیا گیا یہاں کے؟ بس میں یہاں آئی تو بس بہت پریشان تھی، کسی سے بھی رابطہ نہیں تھا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس تم ایسے ہی دن گزر گئے تو چلے گئے واپس۔ پھر سے سب نے وہاں پر بلایا، اس سے ایگریمنٹ بھی لکھوائی کہ اب تم رابطہ رکھو گے زبردستی۔ اس کے جو ہمارے جو سے کاغذ تھے وہ بھی وکیل میئر کا اس نے جلا دیے۔ پھر اس سے ایگریمنٹ لکھوائی کہ جب آپ رابطہ کرو گے یا کچھ بھی کرو گے تو پھر جو بھی ڈنڈ ہے وہ رکھا جائے گا۔ پھر مجھے ڈرایا دھمکایا کہ اب رابطہ نہیں رکھنا، پر ڈنڈ پڑے گا، ہم کہاں سے پیسیں گے۔ مجھے کہا کہ اس کے بھائی نے رکھا ہے ڈنڈ، اس کو کہا کہ اس کے گھر والے نے رکھا ہے، یعنی آپ کو ڈبل مینڈیٹ کیا گیا؟ جی۔ ابھی آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ جی، جہاں پر میں اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ کے والدین لے گئے تو آپ نے اسلامک ایجوکیشن جاری رکھی، عبادات جی اسلامک؟ میں عبادت کرتی ہوں، میرے گھر پہ قرآن شریف کو پڑھا ہے۔ اچھا، آپ نے شادی سے پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا یا جب آپ کو پہلے ہی ہمارے گھر پر نکاح سے پہلے آپ نے قرآن پاک پڑھا تھا؟ اب آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں ماں باپ سے کہ مجھے تنگ نہ کرے، میں خوش ہوں، میں پہلے بھی نکل گئی، بہت کنواری بھی تھی، اب چھوڑ دیں بس۔ ابھی جب آپ خوشی سے اس سے ملی، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہاں آنے کا مقصد ہم محفوظ ہیں۔ اچھا، وہاں محفوظ نہیں تھے آپ؟ نہیں، وہاں کہاں پر بھی نہیں محفوظ۔ اچھا، آپ کی زندگیوں کو خطرہ تھا کہ وہاں پہ؟ ہاں، خطرہ تھا نا، دونوں طرف سے، اس کے گھر والوں سے بھی، مجھے بھی، اپنے سے بھی۔ اچھا، یہ بچی کہاں پیدا ہوئی ہے آپ کی؟ میرے گھر پر ہے، آپ کے والدین کے گھر پہ؟ والدین۔ اچھا، کتنا عرصہ آپ جب نکاح کیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ کتنا عرصہ آپ نے اس کے ساتھ گزارا تھا؟ 1 ہفتہ وہاں پر کراچی میں، جب نہیں، جب نکاح کے بعد 1 ہفتہ ہم ساتھ تھے۔ اچھا، تو بچی سارا کچھ وہاں پہ ہوا ہے آپ کا؟ ہاں، وہاں پر۔ بہن، آپ نے بولا کہ آپ نے قرآن پاک کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، تو کوئی آپ آیت سنائیں گے؟ جی، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کلمہ آتا ہے؟ جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारका इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बकरा तो सुनाए। आप जब मुसलमान हुई, आप इससे जुदा हुई, आपको अलहदा रखा गया, उस दौरान तकरीबन 6 साल का अरसा थोड़ा अरसा नहीं होता, कभी आपको दिल में महसूस हुआ कि मुसलमान का जो है मैं छोड़ दूं और मैं सारे पुराने मज़हब पे आ जाऊं? कभी आपको ये सोचा, या कभी आपको किसी ने प्रेशर डाला, या कभी आपके दिल में ख्याल आया? प्रेशर घर वालों ने डाला कि शादी करो, अच्छा। मैंने नहीं की, पर उसने ज्यादा नहीं डाला कि डर रहे थे हम प्रेशर डालेंगे तो फिर से चली जाएगी। आपने तैयार कर लिया था एक न एक दिन ज़रूर मिलोगे आप इससे? मिलेंगे, बस जब अल्लाह ने मौका दिया फिर चले आए। अच्छा, तो अभी भी आपने इसको ढूंढा या इसने आपको ढूंढा? मैंने ढूंढा आपने। भरचुंडी शरीफ का नाम आपने सुना या मैंने सुना, कैसे सुना, कहाँ पे सुना? फेसबुक पे जो लड़कियां मुस्लिम हुई हैं, अच्छा। उस पर फेसबुक पे मैंने वो देखा। फेसबुक पर देखकर आप यहाँ पहुँची हैं? अच्छा, आपको यहाँ पे कोई लाया तो नहीं ना जबरदस्ती? नहीं खुद आए हम अपनी गाड़ी में। आप अपनी मर्जी से आए हैं? अभी जहाँ भी रहोगे अपनी मर्जी से रहेंगे? बस घर वालों से कह रही हूँ कि मुझे परेशान ना करें। भाईजान, अभी आप बताएं क्या मसला है, क्या माजरा है, हकीकत क्या है? मसला तो कुछ भी नहीं है, बस ये मेरी बीवी है, इसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, और मुझे दुख जो है ना हिंदू कम्युनिटी से नहीं है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं ही नहीं। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान अली है। अच्छा, मुझे जो दुख है मुझे हिंदू कम्युनिटी से तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी तो मेरे हैं ही नहीं, वो तो मेरे अपने हैं ही नहीं। मुझे दुख है ना अपने मुसलमान भाइयों से, जो मुझे तंग करते हैं ना, वो मेरे मुसलमान भाई हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप मुसलमान हो, सबसे पहले जो फ़र्ज़ है आपका वो मुसलमान होने का फ़र्ज़ है। ना मैंने कभी ज़बरदस्ती की है, और ना ही इस्लाम में ज़बरदस्ती कोई जायज़ है। मैं ये अपनी मर्ज़ी से इस्लाम इसने कबूल किया है, और लोग कहते हैं मैंने इसको ज़बरदस्ती किया है, मैं तो कहता हूँ इसने मुझे ज़बरदस्ती की है। ये मुझे जो है ना इस्लाम पे लाई है, इसने मुझे दीन सिखाया है। ये कहाँ से लग रही है जो आप आयतें सुन रहे हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसका क्या माना है? ये आपसे क्या कहना चाह रही है? ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद क्यों पढ़ रही है? ये ऐलान कर रही है कि अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है। ये कहाँ से आपको हिंदू लग रही है? आप मुझे ये समझाएं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ, मैं हिंदू से मुखातिब नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे तो अपने नहीं है ना। मैं मुसलमान को दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको बार बार कह रही है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, वो आपको बुला रही है, ये मुसलमान होना चाह रही है, और आप मेरे अपने होकर ये आप काम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, 6 साल से मेरी बच्ची है, ये मुझसे दूर रही है। सारे कसूरवार आप हैं, जो मेरे बच्चों से आपने मुझे अलग किया है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं आपको क्या नाम दूं। आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों किया? मेरे पेरेंट्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हिंदू कम्युनिटी का एक रोल है, वो कम्युनिटी है, वो पावरफुल है। उसने मेरे सारे घर वालों को उठा लिया, उसने मेरे भाई को मजबूर कर लिया। अच्छा, वो कौन वहाँ है? की हिंदू कम्युनिटी इतनी पावरफुल है क्या? वहाँ पे पावरफुल है, और नाम rich क्या है उनके? उसके नाम ये इसके जो होते हैं, ये तोलाराम है कोई, और मैं तो इनको कोई कसूर देना ही नहीं चाह रहा, मैं इनका नाम ही नहीं लेना चाह रहा। मैं अपने मुसलमान भाइयों का नाम लेना चाह रहा हूँ, जिनने मेरे साथ गद्दारी की। जब हम अपने ईमान पर हैं, सही है तो वो कैसा क्यों कर रहे हैं? बस हम मैं साथ तो रहना मेरा दिल कर रहा है मैं उनका नाम लूं, क्योंकि वो मुसलमान है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो किस किस्म के मुसलमान है। इतना अरसा आप जुदाई रहने के बाद अब आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे शहर वालों ने तो मेरा कुछ किया ही नहीं ना, वो तो मेरे सारे दुश्मन बन गए। बस ये अल्लाह मियाँ मिठा साहब को, मियाँ असलम साहब को खुश करे, जो अल्लाह ताला ने इस दौर में इस जैसे इंसान पैदा किए हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, मजलूमों की मदद कर रहे हैं। कोई मुसलमान बनना चाह रहा है, झूठा इल्जाम है कि जबरदस्ती, भला ये तो हमें जानते तक नहीं, हम मेड़ कहाँ ये तो मैं जानते भी नहीं है। हमने इनसे फोन पे रब्ता किया, और अल्लाह मैं इनको क्या दूँ? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरी जिंदगी इनका एहसान कैसे चुकाऊंगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसका कैसे चुकाऊंगा। ये मेरी बच्ची है, आपको लग रहा है किसी और की है क्या? आपको लगता है इसको बाप का प्यार नहीं चाहिए? आप मुसलमान भाई हो मेरे, मैं अपने शहर के मुसलमानों से मुखातिब हूँ, जो अपने आप को सेक्युलर मुस्लिम बुलाते हैं, वो मुसलमान नहीं है, मैं उनको नहीं मानता मुसलमान। ये मेरे कागजात हैं सारे, ये देखें,
6 साल हो गए हमारे निकाह। हमारे निकाह को 6 साल हो गए। ये मैंने निकाह किया था, सबसे पहले मैंने इसको इस्लाम कबूल करवाया। इसका नाम था पूजा कुमारी। फिर बाद में इसने अपना नाम खुद चुना, आयशा। आप इससे पूछे तो सही, आयशा क्या है? ये आपको बताएगी आयशा क्या है। ये आपको बताएगी हज़रत उमर फारूक क्या है, अबू बकर क्या है, उमर क्या है, अली क्या है। ये आपको हमारे नबी के बारे में बताएगी, ये हमारा रसूल क्या है, ये सब आपको बताएगी। ये फिर मैंने इससे निकाह किया। निकाह के बाद ये इसने मुझे खुद अपने हाथों से एग्रीमेंट लिख के दी। इसने खुद मुझे कहा मेहरबान आपको लिख के देना हो, अपने हाथों से इसने मुझे एग्रीमेंट लिख के दी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। आप ये देखें। उसके बाद ये मेरा NIC है और इसका ये मैच्योरिटी जो सर्टिफिकेट है ये बालिग थी। उसके बाद ये कोर्ट का आर्डर है, जस्टिस ऑफ पीस का आर्डर है कि ये आप अब जो है अपने शोहर के साथ रहना चाह रही है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। मगर क्या करें, अपने पुलिस वालों का क्या करें, उसका कुछ भी नहीं कर सकते ये हम। कहती हूँ पुलिस की मतलब टूट जाए, पुलिस हमें तंग ना करे, इसके घर वालों को तंग ना करे। आपको मतलब पुलिस से भी खतरा है कि पुलिस कर सकती है? मेहर पुलिस जो भी उनको कहेगा, मेरा पापा तो जाएगा, थोड़ी कोशिश करेगा ना, जिसको भी कहेगा इसके घर पे रेड कर, पहले भी इसके घर पे रेड करवाया, रेड किया विदाउट एनी FIR, विदाउट एनी FIR, कोई FIR नहीं थी मेरे ऊपर। बस उन लोगों ने पैसे लेकर बस रेड कर दिया। बहन आप पढ़ी हुई है? जी, कितनी तालीम? BSc तालीम कहाँ से हासिल की है? मेहर से। मेहर से की। अच्छा एक सवाल है कि जो आपने इतनी इस्लामी तालीमात के मुताला किया है, ये अपना इनसे इरफान से मुलाकात से पहले आपका शौक हुआ, शौक था या बाद में? पहले मैं इससे पहले ही जो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, मेरे घर पर भी था। जब मेरा ऐसे वास्ता हुआ तो उसे पता था मेरे पास कुरान शरीफ पढ़ा है। अच्छा इस्लाम से तो अपना आपका ताल्लुक इनसे अपना वापसी से पहले का है? बहुत पहले का है, मैं तो बाद में आया। अभी आप बचपन से अभी यहाँ पहुँचने के बाद तमाम सहाफ़ी साहबान बैठे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, आप किससे अपील करना चाह रहे हैं? मैं अपने वज़ीर आज़म से, PM से अपील करना चाह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी से अपील करना चाह रहा हूँ। खुदारा आप देखें, मैंने कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। आप इनसे एक बार नहीं 100 बार पूछें, मैंने इनसे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। आप पूछें, ये मेरी बेटी है, मेरी इसमें से ही बेटी है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझसे छीन ली थी। अब खुदा ने जब मेरे ऊपर रहमत की तो मियाँ मिठा साहब के ज़रिए, मियाँ असलम साहब, ये तो मुझे जानते भी नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इनको तो मेरा बैकग्राउंड का पता भी नहीं है। आदि आप क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? अच्छा बहन आप अपने वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वालिदैन को यही कहना चाहती हूँ, बस मुझे छोड़ दें अपने हाल पे, हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तंग ना करें, बस कोई भी प्रेशर नहीं डाले, ना कोई केस करे, कुछ भी नहीं। जैसे आप लोगों की हिंदू पंचायत की जो मुखी हैं या वहाँ पे बरादरीज हैं, उन्हें आप खुल के पैगाम दे रहे ताकि फिर इनके घर वालों को ज़ाहिर हिरासत करेंगे? जी मैं सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल को कोई भी परेशान ना करे। मैं खुश हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, किसी का जोर जबरदस्ती। आप अब कैसे अपील करेंगे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए? मैं वज़ीर आज़म से अपील करना चाहती हूँ कि हमें बस जीने दें सुकून से और कोई भी तंग ना करे। मेहरबानी। जी दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और